السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں جیسا کہ پہلے کرتے تھے آپ لوگ۔ ابھی تو پھول کھلنے ہیں اس قدم شبانہ شوکت، اس کے یوں ترک محبت کا سبب ہوگا کوئی، جی نہیں مانتا وہ بے وفا پہلے سے تھا، تیرے آنے سے تو بس زنجیر ہی بدل گئی، ہم سیروں پر جفا کا باپ پہلے سے تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لبوں سے بے اختیار فقرہ ادا ہوا تھا۔ سلوا نے ہلکے سے جھٹکے سے گاڑی روک دی، سامنے لوگوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا، یقیناً کوئی حادثہ۔ بیٹا اتر کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ ان کے کہنے پر سلوا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی سے اتری اور کچھ ہی دیر میں واپس بھی آ گئی۔ دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک گاڑی والے نے تو بچ گئے ہیں، دوسری گاڑی والے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اللہ رحم کرے، میں دیکھ لوں۔ اجازت طلب نظروں سے سلوا کو دیکھا، جس نے سر کو یوں دائیں بائیں ہلایا جسے کہہ رہی ہو آپ نہیں رہیں گی، بغیر دیکھے اور دیکھ کر اپنی جو طبیعت خراب کریں گی، اف۔ وہ قریب پہنچی، وہاں دو تین مرد مل کر اس آدمی کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ بس ایک پل کو اس کا چہرہ ان کے سامنے ہوا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش تھا، مگر انہیں ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری دن ہو میری زندگی کا، یہ آنکھیں اس رات ہو جائیں گی اندھی جو دیکھے سوا تیرے سپنا کسی کا۔ وہ کچن کے کام کرتے ہوئے مسلسل گنگنا رہی تھی۔ اوہو، یہاں ہمارے لیے گانے گائے جا رہے ہیں اور ہم بدھوں کی طرح آفس میں بیٹھے بس کام کیے جا رہے ہیں۔ ولید اچانک آئی اور تیزی سے پلٹی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو بس یوں ہی۔ اور آپ بھی آفس میں نہیں بلکہ گھر کے کچن میں موجود ہیں۔ وہ ہنستا ہوا قریب آیا۔ گرامر کی غلطیاں نکالنے کے بجائے اس چمڑے کے پیچھے چھپی محبت کو محسوس کرو مائی ڈارلنگ، وہ مجھے پتا ہے۔ اب زیادہ فرینک ہونے کے بجائے اندر چلے، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس نے ولید کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ وہ ہنستا ہوا لونج میں چلا گیا۔ وہ چائے کے ساتھ تھوڑا بہت اہتمام ضرور کرتی تھی، سو اس وقت بھی براؤنیز اور سینڈوچ موجود تھے۔ وہ ٹرالی لے کر لاؤنج میں آئی، ٹرالی کے نیچے سے ایک ٹرے نکال کر ایک پلیٹ میں براؤنیز اور دوسری میں سینڈوچ رکھ کر چھوٹی پیالی میں کیچپ نکالی اور ساتھ ہی کیچپ میں کپ میں چائے ڈال کر ٹرے تیار کر کے حدید کے روم میں آ گئی۔ وہ کمپیوٹر میں اتنا محو تھا، یہ اسے دیکھ کر ہو گیا تھا، وہ جان نہ پائی۔ انیسہ نے مسکراتے ہوئے بڑے اس کے کمپیوٹر کے ساتھ رکھ دیے۔ ٹرے آنا ادھر، یہ چائے۔ حدید نے نگاہ غلط بھی اس پر نہیں ڈالی، وہ پلٹ کی۔ حدید اٹھ چکا تھا، اس کا منہ دھلا کر باہر آنے والے والہانہ باپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری جان، ولید نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ انیسہ مسکراتے ہوئے ولید کو پلیٹ میں سینڈوچ رکھ کر دینے لگی۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا اور ولید کو بھی چھوٹے چھوٹے بائٹس دے رہا تھا۔ ہنستے مسکراتے میاں بیوی کھلکھلاتا بچہ، کسی نے بڑی نفرت سے یہ خوشگوار منظر دیکھا تھا۔ سلوا پلیز اس کے بارے میں معلوم کرو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ سلوا بیٹا جلدی پتہ کرو اس کا، اس لیے میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ آپ نہ دیکھا کریں ایسے سینز، آپ میں برداشت تو ہے نہیں۔ سلوا کو غصے کے ساتھ ماں پر پیار بھی آ رہا تھا، جو کسی کو زخمی، بیمار یا دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری بچی، مجھے بس اتنا پتہ کر کے بتا دو کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، اس سے کوئی بڑی چوٹ تو نہیں آئی ہے نا؟ یا اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے رب کریم، کرم فرما میرے مالک۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ سلوا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ موم تو کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہیں، اب اس کا پتہ کرنے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ تو تم احمد کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، مشورہ حاضر تھا۔ وہ گہری سانس لیتے احمد کو بلانے چلی گئی۔ بلو چیک والی شرٹ اور بلو ہی پینٹ میں ملبوس وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ انیسہ نے نظر بھر کر اسے دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ بلا شبہ بڑی آنکھوں میں مقناطیس کی سی کشش تھی، گھنی منہ، تیکھی ناک اور چھوٹے سے دہانے میں مکید خوبصورت ہونٹ، صاف رنگت مگر ایسی جاذبیت جو گورے رنگ میں بھی نہ ہو۔ انیسہ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا، بہت پیارا، حالانکہ وہ اس سے بہت اکڑ کر بات کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل اس کی طرف کھینچتا تھا جسے لوہا مقناطیس کی طرف ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر اس سے مخاطب ہوتی، آگے بڑھ کر اس کے کام کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اگر اسے ناپسند کرتا بھی تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بس اسے دیکھ کر کسی اور طرف متوجہ ہوتا۔ شدید سے بھی بات نہیں کرتا تھا، وہ کوئی بات کرتا بھی تو مختصر جواب دے کر ادھر ادھر ہو جاتا، موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ کوئی سے فری ہو پائے۔ صرف ولید سے بہت احترام و ادب سے مخاطب ہوتا تھا۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا دیتی، وہ آ کر چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور کالج چلا جاتا، اسی طرح کھانا چاہے رات کا ہو یا دن کا۔ وہ بہت خاموشی سے کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، انیسہ سے بالکل مخاطب نہ
نہیں ہوتا تھا۔ ولید اور نیزا اگر ساتھ بیٹھے ہوتے یا کھانا چائے وغیرہ نوش کر رہے ہوتے، وہ اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتا، مگر ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو نیزا اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جایا کرتی تھی، مگر اس کی پریشانی کا بل اس کے چہرے کے ناگوار تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس سے اپنی حد میں رہے تو بہتر ہے۔ پھر اس نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سدید کی پیدائش سے اس کا دھیان بھی بڑھ گیا اور اب تو سدید بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ ان کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں اور بازو پر چوٹ آئی ہے۔ ابھی کچھ دن انہیں ہاسپٹلائز رہنا ہوگا، مگر اچھی بات ہے کہ چوٹیں زیادہ سیریس نہیں ہیں۔ سلوی نے ہاسپٹل سے آ کر انہیں پوری رپورٹ دی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، صبح مجھے بھی لے چلنا اور ناشتہ وغیرہ بھی لے چلیں گے۔ سلوی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے دیر ہو جائے گی موم، وہ جھنجھلائی۔ تو ایک دن دیر ہو جانے سے کیا ہوتا ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا تمہیں۔ ایک بیمار کی عیادت کتنا ثواب کا کام ہے، پھر وہ تو ہے ابھی دوسرے شہر کا۔ روانی سے کہتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ وہ ایک کہہ بیٹھی ہیں۔ یہ تو سلوی کے حیرت سے کھلے منہ اور پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا موم کہ وہ دوسرے شہر سے ہیں؟ آپ ان کو جانتی ہیں، اس لیے آپ اتنی بے چین ہیں؟ وہ بے در پہ سوال کر رہی تھی اور صرف نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ نصیرہ صفائی کر رہی تھی، اس کی بیٹی رکشی نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ انیسہ کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کال بیل کی آواز پر رکشی نے دروازہ کھولا اور عالیہ اندر آ گئی۔ عالیہ آپا آئیے آئیے۔ وہ محبت سے ان کے گلے لگی۔ ان کے ساتھ سوہا بھی تھی۔ اورنج اور ریڈ کنٹراسٹ کے جدید لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہاروں کی سی تازگی اپنے اندر سموئے وہ 15 سالہ لڑکی جس کی نوجوانی کا آغاز ہوا تھا، وہ جوانی کی تمام تر خوبصورتیاں اپنے وجود کے لیے منظر عام کو کتنا خوبصورت بنا رہی تھی۔ کوئی انیسہ سے پوچھتا۔ اس وقت رکشی صابن اور کدوکش لیے وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پلیٹ میں کدوکش رکھ کر تیز تیز صابن کش کرنے لگی۔ صابن کے لچھے تیزی سے پلیٹ میں گرتے ہوئے ایک نرم سا ڈھیر بنا رہے تھے۔ اوئے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ عالیہ ہماری حیرت کے منہ میں انگلی دے کر بمشکل بول پئی۔ اف مامی، یہ آپ کا صابن کا حلوہ بنائیں گی؟ سوہا کا تو سوچ کر ہی دل مترانے لگ گیا تھا۔ انیسہ جو کچن میں چلی گئی تھی ہنستی ہوئی باہر آئی۔ رکشی تو پہلے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ صابن کا حلوہ؟ چلو اسے جلدی سے موزے میں ڈالو۔ رکشی نے مٹھیاں بھر کر وہ صابن ایک جراب میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ عالیہ سے رہا نہ گیا۔ آپا اس طرف صابن کش کر لیتی ہیں تو جلدی گھل جاتا ہے اور موزے میں ڈال کر آگے سے گرہ لگا دے گی تو کپڑے سے چپکتا بھی نہیں۔ اس نے یہ طریقہ کہیں سے سیکھا ہے، میں تو اب عادی ہو گئی ہوں۔ انیسہ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی تو سوہا کی رکی سانس خارج ہوئی۔ مائی گوڈنس، اس نے جھرجھری لی۔ انیسہ نے پہلے تو پرتکلف چائے کا اہتمام کیا، پھر کھانے کا، اور کھانا شروع ہونے سے پہلے حدید بھی آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سوہا کی آنکھوں میں تو قندیلیں روشن ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں بھی چمکے میں چلنے لگے تھے۔ انیسہ جانتی تھی وہ کتنا ہی روکھا کیوں نہ ہو، مگر سوہا کی آمد یا عالیہ آپا کے گھر جانا ان کی طبیعت میں جون چار لے آتا تھا۔ وہ سب سے نظر بچا کر سوہا کو دیکھتا، سوہا کی اٹھتی گرتی پلکیں اور دم بدم گلابی پڑتا چہرہ انیسہ کو بے اختیار دونوں پر پیار آتا تھا۔ کھانا بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور شام کو ولید کے آنے پر پھر سے ایک ہائی ٹی کا بندوبست کیا گیا تھا، جس میں انیسہ کا ساتھ سوہا اور عالیہ نے بھی دیا، بلکہ ولید بھی باہر سے بہت کچھ لے آیا تھا۔ چائے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حدید انہیں چھوڑنے گیا تھا۔ اسے ڈرائیونگ سیکھے بھی سال بھر ہوا تھا، سو شہر کے اندر تو آرام سے گاڑی چلا لیتا۔ یار، اب اتنا کچھ کھانے کے بعد تو ڈنر کی بالکل خواہش نہیں رہی، ولید نے اس کے پوچھنے پر منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچن سے بیٹھ کر آئی تو حدید سے پوچھنے اس کے کمرے میں آئی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ لے آئیں جی۔ وہ کوئی بک پڑھ رہا تھا، اس لیے سر اٹھائے بغیر بولا۔ انیسہ نے کچن میں آ کر اس کے لیے تازہ روٹی پکائی اور سالن گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر اسے دے آئی۔ دودھ وہ چولہے پر رکھ چکی تھی۔ شدید کا فیڈر ولید اور حدید کے دودھ کے گلاس تیار کر کے ان کی سائڈ ٹیبل پر پہنچائے اور حدید کے کھانے کے برتن کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب چونکہ وہ سخت تھکی ہوئی تھی، اس لیے اس کی طلب اس کا نرم گرم بستر تھا۔ انہوں نے ایک فلاسک چائے کا تیار کیا، انڈے ابال کر انہیں لفافے سے کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک کے ایک چھوٹے سے ٹفن باکس میں پیک کیے اور 2 انڈے فرائی کیے، ایک چیز آملیٹ بنایا، ایک پستہ پراٹھا اور تازہ ڈبل روٹی کا پیکٹ دودھ اور جوس کے ڈبے اس کے علاوہ تھے، اور سلوی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بڑے بڑے شاپرز کے سائز تیار کر کے نکلنے لگے کہ عامر کے ساتھ اشار اور امر آ گئے۔ یہ کہاں کی تیاری ہے؟ عامر نے حیرت سے سارے سامان پر نظر ڈالی۔ سوشل ویلفیئر، آپ کو تو پتہ ہے نا ہماری موم کا کوئی بندہ دکھی یا زخمی نظر آ جائے تو بس اب یہ سب ایک بندے کی عیادت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ سلوی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھے اچکائے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے بہن کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا۔ میری بہنا کی کیا بات ہے، یہ تو فرشتے کی مانند ہے۔ اوہ بیٹھو، تم یہ سامان گاڑی میں رکھو جب تک۔ عامر کو ساتھ لیے وہ لانچ کی طرف بڑھی۔ عاشر سلوی کے ساتھ وہ سامان گاڑی میں رکھوانے لگا۔ آنے کے لیے آج ارش کے گھر والوں نے آنا ہے تو یہ آپ کو بلا رہی، کہہ رہی تھی آپا آئیں گی تو ہی سارا پروگرام ڈیسائیڈ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये थोड़े से काम निपटा लूँ तो चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो तो ऐरे गैरे के काम आने के लिए हरदम तैयार रहती थी, ये तो जान से प्यारी भतीजी का मामला था और एकदम से एक्साइटेड हुई। तो ये जो आप कहीं जा रही हैं? वो हाँ। वो चुप सी हो गई। सलवा को कहती हूँ शार के साथ, आशिर सोरी के साथ हो आए, तुम्हारे साथ चलती हूँ। लम्हों में फैसला किया और उठ गई। ये अचानक प्रोग्राम बनता है इनका। हाँ, अभी 10 बजे फोन आया है कि हम शाम को आ रहे हैं। सोबिया के साथ हाथ पांव फूल गए हैं, मुझे भगाया आपकी तरफ कि आपा को लाओ, वहीं कुछ करेंगी। सलवा को कह दूं कि वो वहीं आ जाए, चलो मैं तैयार हो जाऊं। उन्होंने मोबाइल पर्स में रखा और चश्मा लगाकर चादर और तीन के साथ चली थी। एम वक्त तेजी से गुजरा था। हदीद ने एमबीए कर लिया था और सदीद क्लास 2 में पहुंच गया। हदीद को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, वह बहुत खुश रहता था। अनीसा से भी कुछ बेहतर रवैया हो गया था। बदतमीजी तो पहले भी नहीं करता था, मगर अब वो खिंचाव जो पहले इसके रवैये में महसूस होता वह नहीं रहा था। वो न सिर्फ खाना इसके साथ खाता बल्कि थोड़ा बहुत हंस बोल भी लेता था। वो खुश थी कि इसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। इस दिन वो ऑफिस से आया तो लॉन्च में ही बैठ के नहीं इसके लिए चाय ले गया। सदी लॉन में साइकिल चला रहा था। आज थकावट हो गई है तो सोचा चाय पीकर ही रूम में जाऊं। वो मुस्कुराया। हाँ, चाय पीकर थोड़ा रेस्ट करो, फ्रेश हो जाओगे। चाय पीकर वो उठा और उसके साथ जुटकर बैठ गया। अनीसा गैर आदतों पर थोड़ा पीछे खिसकी। हदीद ने इसका हाथ पकड़कर सामने किया। आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। अब वो इसका हाथ अपने होठों तक ले जा रहा था। अनीसा ने नरमी से हाथ छुड़ाया, मुस्कुराने की कोशिश की। न जाने इसे क्यों अजीब सा लग रहा था, शायद इसलिए कि वो इससे पहले भी इतना फ्री नहीं हुआ था, मगर आज इसकी हैरत खत्म होने वाली नहीं थी। वो इसकी कमर के गिर्द बाजू उखाड़ करके इसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाया। वह झटके से दूर हुई। हदीद, तुम हवासों में तो हो? नहीं, तुमने मुझे हवासों में रहने ही नहीं दिया। ये तर्ज मुखातिब देखने का ये अंदाज, वो तुम बखूबी से देख रही थी कि तर्ज। वो मजीद करीब हुआ। तुमने मुझे पागल कर दिया। अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत। अनीसा। अनीसा ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ सदीद की उंगली थामे वलीद खड़ा था। हैरान है। यकीनन हदीद एकदम खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे बस। वलीद जबत की इंतहा पर था। चुप रहो तुम। अनीसा का रंग सफेद पड़ गया। वह खड़ी हुई तो यूं जैसे अभी गिर जाएगी। वलीद ने हदीद को सख्त लहजे में मुखातब किया। तुम जाओ अपने रूम में और तुम आओ मेरे साथ। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए इसके पीछे बेडरूम में आई। मुझ में कोई कमी है? कौन सी तलब तुम्हारी तलब पूरी नहीं हुई कि तुम इस 22 साल के लड़के को इस्तेमाल करने लगी बगैर ख्याल के? तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बिलबिलाई। मैंने जब वो सब देखा है, देखकर और क्या कह सकता हूँ? इसके लहजे की कार ने अनीसा को जख्मी कर दिया था। आपको मुझ पर इतना सब इत्मीनान नहीं है आपके ख्याल में? ऐसी हूँ मैं? ऐसी नहीं थी तो भी बनने में कितनी देर लगती है। वो जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। अनीसा के सर पर तो छत आ पड़ी थी। इतने धमाके हो रहे थे कि इसे कुछ समझा ही नहीं दे रहा था। वहां दरवाजे पर जैसे हदीद अंदर आया। आई एम सॉरी, मगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इन्होंने मुझे ऐसे फिजिकल किया कि बट आई एम सॉरी पापा। गिड़गिड़ा गड़गड़ करती पूरी ट्रेन अनीसा के वजूद के परछक्के परखच्चे उड़ाती गई थी। वो फटी फटी आंखों से हदीद को देख रही थी जो भी मजीद कह रहा था। ये बहुत दिनों से मुझसे फ्रैंक हो रही थी, मगर आज ये कुछ ज्यादा ही। बस आगे कुछ नहीं। इसे रोककर वलीद अनीसा की तरफ मुड़ा। तुम हरगिज ऐसे पकड़ीजा रिश्तों की अहल नहीं हो। तुम किसी के साथ ऐसे मुकद्दस बंधन में बंदी रहने की अहल नहीं हो। तुम उठो, अभी मैं तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। तुम अब बस मेरे साथ नहीं रह सकती। इसका लहजा बेलचक था। नहीं वलीद, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तड़प कर वलीद की तरफ बढ़ी, मगर वो पीछे हट गया। नहीं, एक लफ्ज और मजीद नहीं कहना। उठो और चलो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, वरना दूसरी सूरत में गलत तरीके से निकाली जाओगी। वलीद की आंखें खून छलका रही थी और लहजा बहुत संगीन था। नींद तड़प कर रोने लगी। नहीं वलीद, प्लीज ऐसा ना करे, मैंने कुछ नहीं किया। वलीद बगैर कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वो हदीद की तरफ देखकर रोते हुए चीखी। वो महबूब सा मुस्कुराया। इसकी खूबसूरत मकनातीसी आंखों की चमक दोगुनी हो गई थी। मासूम चेहरे पर खवासत ही खवासत थी। अनीसा आओ। बाहर खड़े वलीद के आवाज सुनकर वो मुतवशिश हुई थी। सदीद कहाँ था? शायद वलीद के साथ। वो तेजी से लाउंज क्रॉस करके पोर्च में आई। सदीद कहाँ है? तुम गाड़ी में बैठो। सर्द आवाज बेमहल लहजा। पर सदीद को तो आने दो, वो नहीं आएगा। वलीद इसकी तरफ देखे बगैर विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। इसने बेयकीनी से इसे देखा। क्यों नहीं आएगा? वो मेरे बगैर कैसे रह सकता है, और मैं इसके बगैर? जब हदीद अपनी माँ के बगैर रह लिए तो सदीद भी रह जाएगा। मेरे बच्चों के नसीब में माँ ही नहीं है। लहजे से कर्ब चलक रहा था। वो गाड़ी से दूर हो गई। मैं अपने बेटे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुम जैसे बदकिरदार औरत के वाले ऐसे नहीं करूंगा। जिद करोगी तो बहुत बुरा होगा। इसने नफी में सर हिलाया। अनीसा को लग रहा था आज इसके लिए क़यामत बर्पा हो चुकी है। इसके अल्फाज पत्थरों की शक्ल में संगसारी कर रहे हैं। जमीन आसमान फट चुके हैं। इसके लिए कोई चाय पनाह नहीं है। हरीश और इसके घर वालों की आमद ने खुशगवार हलचल मचाई थी। सारा दिन खुशगप्पों और मेहमान नवाजी में गुजर गया था। वो सोफे के साथ मसरूफ रही। रात को घर वापस आई तो किचन में रखे बर्तनों को देखकर वो जख्मी
याद आ गया। सलवा बेटा, इसकी तबीयत कैसी है? बेहतर था मोम। इसने बगैर चौंके ऐसे जवाब दिया जैसे वो इनकी तरफ से इस सवाल के मुंतजिर थी। कुछ कहा तो नहीं था? नाश्ता देकर वो कुछ हिचकिचाहट इश्ताक से पूछ रही थी। कह रहे थे आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? और हैरान भी हो रहे थे। दोबारा पूछा, आप कौन है और मुझे कैसे जानती हैं? वो इस बेपरवाह अंदाज में बता रही थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कल मैं और मेरी मॉम गुजर रहे थे तो हमने आपको जख्मी हालत में देखा। तो हॉस्पिटल का तो वहीं पता चल गया था। नाम भी एक साहब ने आपकी आईडी का कार्ड से पढ़कर सबको बता दिया। हमने ढूंढ लिया। मेरी मॉम आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी तो इन्होंने ये नाश्ता खुद अपने हाथों से तैयार करके बेचा है। फिर क्या कहा इसने? इनका वही हाल था। थैंक्स कहा और फिर इनकी फैमिली आ गई। वो आपस में बातें करने लगे और हम दोनों चले आए। वो भी शायद इसकी फैमिली की तफसीर भी पूछना चाह रही थी पर सलवा अपना असाइनमेंट बनाने के लिए उठ गई थी। इंसान मर जाता है तो कम अज़ कम दुनिया की नज़रों में तो पुरसकून हो जाता है। हर ये तकलीफ से निजात पा लेता है। मगर जिंदा इंसान जो एक साथ इतनी मुश्किलात और तकलीफ में मुबतला हो जब वो दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाता है। चाहे दिल बहलाने को तमाशा देख लिया जाए, चाहे अबरत हासिल करने के लिए देखा जाए, मगर इसे बार बार देखा जरूर जाता है। और बार बार ना कहीं तो एक बार तो जरूर सही। तो अनीसा भी एक तमाशा बन गई थी लोगों के लिए। हंसता बसता घर उजड़ गया। बेटा छिन गया। न रातों को सोती न दिल को सुकून मैसर आता। 7 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। सदीद जैसे वो इसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, वो अपने साथ चलाती थी। अब इसके बगैर इसका कलेजा मुंह को आता। ऐसी बेकरारी के दिल चाहता कि नंगे पाँव दौड़ती हो जाए और अपना सदीद ले आए। मगर फिर बड़ी बड़ी मिट्टी की तरह ले जाती। खाना सामने रखा होता इसे होश नहीं होता कि वो खाए। इसकी अम्मी जबरदस्ती खिलाती तो वो चंद लुकमों के बाद उठकर मना कर देती। चंद दिनों में वो आदी हो गई थी। अम्मी रूहांसी हो जाती। अनीसा बेटा, खुद पर काबू पाओ। ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगे? यही तो समझ नहीं आता अम्मी। यही तो समझ नहीं आता कि कैसे रह पाऊंगी मैं अपने बच्चे के बगैर। कैसे जी पाऊंगी मैं? मेरी आंखों के आगे से वो हटता ही नहीं। इसके आंसू रुमाने से बह निकले थे। नमाज पढ़ो मेरी बेटी। देखो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ताला की इबादत में है। तुम इसकी इबादत में लग जाओगी तो सुकून भी आ जाएगा। पढ़ोगी नमाज। लेकिन अम्मी, आप भाई से कहकर देखें, वली से मेरा बच्चा मुझे ला दें। इनसे कहें कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ? इन्हें यकीन दिलाएं तो वो मुझे मेरा सदीद दे देंगे। वो इनकी मिन्नत कर रही थी। इनकी आंखें नम हुई। कैसी आजमाइश है! ये औलाद भी खुद अपनी औलाद के लिए तड़पते हुए भूल जाती है कि वो इनकी औलाद, और वो इसे यूं बेचैन देखकर खुद कितनी बेचैन हो बेकरार होती हैं। इनके दोनों बेटे वलीद के पास गए थे मगर इसका रवैया बेलचक था। सोई रवैया। वो अनीसा को कोई रायत देने के लिए तैयार नहीं था। तलाक तो दे ही चुका था। अब और कुछ नहीं था। इसे कुछ भी नहीं। जहेज का सामान, इसकी ज्वेलरी सब वही था। ना इसकी तरफ से तलब किया गया, ना इसने बेचा। रफ्ता रफ्ता अनीसा नमाज की तरफ राग़िब होने लगी। दिल की बहश तो बेकली को कुछ देर के लिए करारा तौर पर सजदे में बिलखने लगती। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे। मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। इसकी अम्मी और इसके भाई कोशिश कर रहे थे कि इसका जहन बढ़ जाए। इस दिन इसके बड़े भाई इसके पास आकर बैठे। अनीसा, तुम अपनी जॉब फिर से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? दानिश मुझे मिला था कि कह रहा था कि अनीसा जैसी ज़हीन लड़की फिर नहीं मिली। वो तुम्हें इसी पोस्ट पर रखने को तैयार है, ज़्यादा सैलरी के साथ। तुम बताओ, करोगी? पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। इसका अंदाज खुद कलामी का सा था। इसने इनका सर थपथपाया। तुम जरूर कर लोगी। फिर वो इसे साथ लेकर गए। कुछ दिन बाद वो कंफ्यूज रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गई। मसरूफियत ने इसकी अजियत कम कर दी थी। वक्त के गुजरने पर अम्मी साथ छोड़ गई। बड़े भाई को सऊदीया में अच्छी जॉब मिली तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर इसके साथ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट छोड़कर जो आइंदा आने वाले वक्त में इनके लिए जीने का सामान बना था। अजहर भाई का फोन था। वो मुस्कुराती हुई किचन में आई। भाई से बात करके मूड खुशगवार हो गया था। सरवा, पता करो वो लड़का हॉस्पिटल से है या डिस्चार्ज हो गया? लड़का? वो मुंह बनाकर बोली। आई थिंक वो अच्छे खासे मर्द हैं, लड़के तो नहीं थे। हनीजा को हंसी आई। अच्छा पापा, मेरे लिए तो वो लड़का ही है। चलो ना मेरी बेटी, बता तो करो। वो कहकर अपना फोन लेने के लिए कमरे में चली गई। वो अभी हॉस्पिटल में ही है। आओ चलो देखते हैं, रास्ते से फ्रूट और जूस भी ले लेंगे। वो उठ गई। सलमा ने देखा और अपने कमरे में चली गई। वो हॉस्पिटल के इस रूम के सामने आ पहुंची जिसमें वो जख्मी मुकीम था। दस्तक के जवाब में यह सुनकर इनकी धड़कनें बेरब्त हुई। मगर सलवा के दरवाजा खोलने पर वो अंदर दाखिल हो गई और वो दरवाजा की तरफ ही मुंतजिर नजरों ऐसे देख रहा था। इन्हें देखकर इसकी नजरें सख्त हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वो इस नरमी और अलमी से मुस्कुराया जो इनका खासा था। आप कैसे? वह हकलाया। हाँ, अब मैं कैसे हूँ? वो यूं बात कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरमियान का ये जो 18 साल अरसा गुजर गया वो बीच में आया ही ना हो। इसने बड़ा मुश्किल थूक निकला। ठीक हूँ अब। मोम, आप बैठे। सलवा ने इन्हें कुर्सी पेश की। वो बैठ गई। वह हैरत से कभी सलवा को और कभी इन्हें देख रहा था। आपकी भतीजी है मेरी, आजिर भाई की बेटी। वो फिर शफकत से मुस्कुराई।
वो जगटुक इन्हें देख रहा था। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला और सोहा बाहर आई। इन पर नजर पड़ते ही वो वहीं मंचबंद हो गई। एक लम्हा नहीं लगा था हदीद और सोहा को इन्हें पहचानने में। 18 साल बाद वो दोनों इन्हें देख रहे थे और सिवाय उम्र बढ़ जाने के इनमें कोई चेंज नहीं आया था। वो खूबसूरत चेहरा वही नरम शफकत मुलायमियत से था। भरपूर मुस्कुराहट सोहा को देकर वो सकी। कैसी हो बेटा? इससे गले मिलकर वो दोबारा बैठ गई। ठीक हूँ। वो हदीद के करीब बेड पर ही बैठ गई। हम दोनों घर जा रही थी कि रिश्ते में हदीद को जख्मी देखा। मैं तो आज आई हूँ, सलवा पहले भी आ चुकी है, उन्होंने वजाहत दी। आप ठीक हैं? हदीद ने मध्यम आवाज में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्कुराई। तुम अब यहाँ होते या किसी काम से आए थे? यही होता, ट्रांसफर करवा दी है मैंने। तो वही तो वो रुके। वो मेरा मतलब वो ठीक है, आप सदीद का पूछना चाह रही हैं। वो समझ गया कि क्यों अटक रही हैं। इन्होंने सुकून की सांस ली। बड़ा हो गया होगा अब तो, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। इस बार हदीद के लहजे में तल्खी झलक रही। बिल्कुल पुराने हदीद की तरह जो हम वक्त सबके साथ नाराज रहता था। कुछ ज्यादा बड़ा? वो उलझी, लेकिन इस बार इसने कोई जवाब नहीं दिया। सोहा तो वैसे ही खामोश थी। अब चले मोम? सिल्वा उकता गई थी। इनका दिल चाह रहा था वो सदीद के मतलब कुछ और पूछे। एक प्यास का सहरा जो अंदर ही अंदर रेत उड़ा रहा था। इस पर कुछ छींटे पानी के पड़ जाएं, कुछ तो इस जान निकालती प्यास का साला हो जाए। पर हदीद तो बिल्कुल चुप था और कुछ जब और कितना पूछती सोच खड़ी हुई। अच्छा चलती हूँ। अब वो कुछ और कहते कि दरवाजा खुला और 3 बच्चे, एक तकरीबन 16 साल का लड़का और 12 या 13 साल की लड़की और छोटा 7 साल का लड़का तेजी से अंदर आए और हदीद से बारी बारी मिलने लगे। पापा। अनीसा का दिल चाह रहा था तीनों को प्यार करे, खुसूसन छोटे को देखकर दिल बहुत खींच रहा था, यूं जैसे सदीद आंखों के सामने आ गया हो। माशाल्लाह वक्त कितना आगे बढ़ गया है, उन्होंने दिल में सोचा और सलवा को इशारा करती हुई आगे बढ़ी। इनके दरवाजे से अंदर आते वलीद को देखकर वहीं चमके। वो भी इन पर नजर पड़ते ही ठिठक गए। इनके चेहरे और आंखों में हैरत जैसे जमची गई थी। पता नहीं कब तक ये सकता छाया रहता कि वहीं छोटे वाला चहका। दादो आए ना पापा से मिले? हाँ आया। वो चौंक कर साइड में हो गया। अनीसा तेजी से आगे चली गई। सिल्वा तेज तेज कदम उठाती पीछे आई थी। आ भी ना मोम, कहा तो उठ ही नहीं रही थी और कहाँ एकदम इतनी तेजी से आई कि मुझे भी साथ नहीं लिया। वो खामोशी से चलती गई। घर वापस आकर वो बिल्कुल खामोश और उदास बैठी थी। मोम तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक हूँ, थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। ओके। वो अपने कमरे में चली गई और अपनी सोचों से भी उलझने लगी। वो बहुत जबरदस्त और हौसले से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था वो सब भूल चुकी थी। इन्हें सब याद था, सब कुछ, और बेदर्द जिसने मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने के वादे किए वो 8 साल मोहब्बत निभा कर ही थक गया और जिस तरह बदगुमान किया गया इस तरह हो भी गया। पल नहीं लगा इस तल्लुक तोड़ने में। कहीं किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आकर या इसकी आजादी से मुतासर होकर फैसला करना मुश्किल न था। इसका मासूम बचपन छीन लिया जिससे बिछड़ने की अजियत जिंदगी की हर खुशी पर बारी थी। हर रात इनका तकिया इनके आंसू से भीग जाता। दिन भर वो जब्त करती रहती। हर रात को सदीद की याद इस शिद्दत से हमलावर होती कि वो तड़पती सिसकती न जाने किस पहर नींद की आगोश में चली जाती। सुबह जब सब लोग फ्रेश होते वो बारी सर के साथ नमाज अदा करती। इन 18 सालों में ना दिल हल्का हुआ था ना सर, दोनों बोझ तले रहता था। इस दुख की चादर लपेट कर ये 18 साल गुजार दिए और जिन्होंने दुख दिया वो अपनी जिंदगी में कितने कितने खुश थे। वो खुदा न खास्ता इनकी खुशी ना कुछ तो नहीं थी, लेकिन एक मलाल सा था कि किसी को भी कहीं इनकी कमी महसूस नहीं थी। किसी के चेहरे पर कोई अफसोस, कोई हसरत इन्हें नजर नहीं आई थी। सदीद तो वो भी यकीनन खुश होगा, बच्चा ही तो था जब इनसे अलग हुआ था। अब तो बड़े होकर इसकी और कितनी ही दिलचस्पियां होंगी जिनमें मगर इसे माँ की कहाँ याद आती होगी, और आती भी क्यों। बदकिरदार माँ जिसे इसके बाप ने इसकी गुमराही की बिना पर न सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि तलाक भी दे दी। इसके मतलब से इसे क्या क्या बताया क्या होगा। वो तो ऐसी माँ का जिक्र भी सुनना नहीं चाहता होगा। हदीद और सोहा की शादी होगी, यानी हदीद तो बेकसूर ही जान गया। सोहा ने बखूबी घर संभाल लिया। इसके बच्चों ने घर में चहकारियां बिखेर दी तो इनकी कमी महसूस भी कैसे की जाती। हदीद कुछ कमजोर हो गए थे, उम्र का भी तकाजा था। हदीद वैसा ही शानदार, खूबसूरत और मगरूर। सोहा भी दिल के शमीज से कम हरगिज नहीं थी। बच्चे बहुत प्यारे, सिर्फ सदीद को देखना नसीब नहीं हो पाया। इनका तड़पता दिल कहीं करार नहीं पाता था। बस एक झलक सदीद की देखने की इतनी तड़पते कि वो हर पल बेकल रहती। आंसू तो आतर से तकिए में जैसे हो रहे थे। दिल इतना बेचैन हो रहा था कि इन्हें हॉस्पिटल पहुंच जाए। हदीद की मिन्नत कर कि इन्हें एक बार, सिर्फ एक बार सदीद से मिलवा दे। उठकर बैठ के मोबाइल फोन उठाकर टाइम देखा। रात के 12 बज चुके थे। पता नहीं वहां जाना मुनासिब था या नहीं। वो कश्मकश में थी कि दरवाजे पर दस्तक देकर सलवा अंदर आई। मॉम आप जाग रही हो ना? मुझे भी नींद नहीं आ रही तो मैं आपके पास चली आई। अच्छा किया ना, स्टडीज मुकम्मल हो गई? वो फीका सा मुस्कुराई। जी सब हो गई हैं। अब आप ये बताएं क्यों नहीं सोई? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। पापा का फोन आया था, आपसे बात करना चाह रहे थे। मैंने कहा कि मैं देख लूँ, सो ना गई हूँ। करवाओ बात, वो मेरे फोन पर नहीं कर सकता था। इसे टाइम देखने की क्या पड़ी थी। वो अपना फोन उठाने लगी मगर इतनी देर में सलवा कार में आ चुकी थी। ये ले, उन्होंने फोन कर
اس کے ہاتھ سے لیا السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو انیزہ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ عطیہ بھابھی اور بچے سب ٹھیک ہے، تم اپنی سناؤ؟ 10 بجے سو جانے والی میری بہن کیسے ابھی تک جاگ رہی ہے؟ وہ کچھ دیر سے پوچھ رہے تھے۔ بس یوں ہی، کیا کہتی اتنا بول کر چپ ہوگی؟ خیر یوں ہی تو نہیں، مجھے لگ رہا ہے تم کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ محبت بڑے لہجے نے رلا دیا تھا۔ ان کے دونوں بھائی کسی بہن سہیلی کی طرح ان کے دل کا حال جان لیتے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کہتی، انہیں پتہ چل جاتا۔ وہ انہیں بتاتی کہ ساتھ ساتھ آنسو بہاتی رہی۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے، کچھ دن اور بولو، اللہ نے چاہا تو تمہاری بے گناہی ثابت ہو کر رہے گی۔ ہم چاہ کر مل بھی لیں تو فائدہ نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا۔ پتہ نہیں وہ شدید کے دل میں تمہارے خلاف کتنا زہر بھر چکے ہوں گے۔ وہ تم سے ملنے کو ہی تیار نہ ہوا، پھر سوچا تمہارا کیا حال ہوگا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہی سوچ تو انیزہ کو روکے ہوئے تھی، ورنہ اسے تو ان کا ایڈریس آج بھی یاد تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ ہر حد بندی توڑ کر اپنے شدید سے ملائے، مگر پھر آگے کے رویے سوچ کر وہیں ڈر جاتی۔ بہت دیر آذر بھائی سے سمجھاتے رہے، جب فون بند کیا تو 1 بج چکا تھا۔ سلمیٰ نے ایک ٹیبلٹ اور پانی کے آگے کیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے گولی نگلی۔ ایک پرسکون نیند کی بہت ضرورت تھی انہیں۔ وقت وہ الیا سے پیچھے چھڑا کر سونا چاہتی تھی۔ انہیں لٹا کر سلمیٰ ان کا سر دباتی رہی جب تک وہ سو نہ گئی۔ ان کے سو جانے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر چادر درست کی اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ شدید ولید لاؤنج میں اس کے منتظر بیٹھے تھے اور حدید کر کے شفٹ ہوتی وہاں واپس آ گئے تھے۔ انہیں شدید کی فکر تھی۔ وہ اکیڈمی سے واپس آیا اور ان کے پاس پھر ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب منتظر نگاہیں۔ کب اذن ملے اور وہ اس کمرے میں جائے؟ حدید کا نہیں پوچھا کہ وہ کیسا ہے اب؟ ان کی آواز میں نرمی تھی، ان کے چہرے کے اثرات میں تناؤ آ گیا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، تبھی تو آپ واپس آئے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی ہے تمہارا؟ نئی اطلاع ہے؟ اس کا لہجہ استزائیہ تھا۔ ولید کو ضبط کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر دونوں کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ولید نے سر صوفے کی بیک پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں میں پھر سے انیزہ آ گئی۔ کل سے ہی یہی ہو رہا تھا، وہ کبھی کسی طرح انہیں جھٹک نہیں پا رہے تھے۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ کا سور اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، ویسی خوبصورت نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ معصومیت جو ان کا نقصہ ہوا کرتی تھی وہ بھی اسی طرح قائم تھی۔ ولید کو تو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حدید کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اپنے مجرم کو جس نے اس کی ازدواجی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر فوراً وہاں سے چلی گئی تھی، مگر وہ تا دیر سوچوں میں ڈوبے رہے۔ حدید اور سوہا ان کی کیفیت سمجھ کر خاموش رہی تھی۔ انیزہ کو طلاق دے کر سے شدید چھین کر اپنی طرف سے انہوں نے خود سے کی گئی اس بے وفائی کا انتقام لے لیا تھا۔ شدید بہت بری طرح روتا بلکتا ماں کو یاد کرتا۔ انہوں نے عالیہ آپا کو کچھ دن کے لیے بلا لیا۔ وہ اپنی سے کوشش کرتی ہار گئی، پر وہ بچہ قابو میں نہ آیا۔ پھر حدید نے بھی نہ اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا، جسے پہلے کبھی بلاتا بھی نہ تھا، اس پر اپنا سارا ٹائم لگانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ بہل ہی گیا، مگر خود ولید وہ چپ چپ رہنے لگ گئے تھے۔ ان کی پہلی شادی بہت کم عمری میں ہی تھی۔ ان کی کزن رابعہ سے ہوئی تھی۔ حدید 2 سال کا تھا کہ اسے بریسٹ کینسر ہوا۔ 4 سالہ حدید کو چھوڑ کر وہ اب دن ہی سو گئی۔ کتنا عرصہ ولید یوں ہی اپنے کام میں مگن رہے کہ بہنوں کو لگا وہ شادی کریں گے ہی نہیں۔ انہوں نے خود ان کے آگے انیزہ کا نام پیش کیا۔ وہ انہی کے آفس میں کام کرتی تھی۔ جب ان کی اور انیزہ کی شادی ہوئی تو حدید 14 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ ولید کی والہانہ محبت کا محور و مرکز تھا۔ اس کی توجہ کے لیے سمٹنے کی عادت ہو چکی تھی۔ پھر یہ عورت، اس کے بعد اس کا بیٹا، دونوں اس کے باپ کی محبت میں شراکت دار بن گئے۔ جب بھی ولید شدید کو گود میں اٹھاتا، اسے پیار کرتا، حدید کے اندر شعلے بھڑکنے لگتے۔ اس کا بس نہیں چلتا وہ انیزہ اور شدید کو اپنے گھر سے، باپ کی زندگی سے باہر نکال پھینکے۔ وہ پوری کوشش کرتا وہ ان لوگوں کے پاس نہ ہی بیٹھے، نہ ہی پسندیدہ منظر خود دیکھے اور نہ ہی دوسروں کو اپنی ناپسندی ظاہر کرے۔ سو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ انیزہ اس کی سنجیدگی سے خفا اور پہلے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اسے باہر بلانے کے بجائے کمرے میں ہی سب کچھ پہنچا جاتی تھی۔ ان کے ذہن میں لاوے پکتے رہتے، پھر اسے موقع مل ہی گیا۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ اس کا مشن کامیاب رہا، وہ بہت خوش ہوا، مگر ایک چیز غلط ہو گئی تھی۔ ولید نے شدید کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حدید تو یہی سمجھتا تھا کہ وہ بھی انیزہ کے ساتھ چلا جائے گا، مگر مجبوری تھی۔ ایسے میں اس کی اور سوہا کی شادی جلد ہی کرنی پڑی۔ عورت کے نہ ہونے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اب سوہا ہی اس کمی کو پورا کر سکتی تھی۔ سوہا نے خوش اسلوبی سے گھر سنبھالا تھا، بلکہ وہ شدید کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا عبدالمعید پیدا ہوا تو عالیہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کی اور بچے کی دیکھ بھال، گھر کے کام سب خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ اس وقت وہ سوہا کے پاس بیٹھی تھی، تھکے ہارے ولید اپنے کمرے میں، جبکہ شدید کوچنگ میں اور حدید آفس میں۔ پورے گھر پر صرف اور صرف سوہا کا راج تھا۔ انہوں نے شرم شماری سے سوچا، وہ یہی تو چاہتی تھی اس گھر میں راجدھانی ان کی سوہا کی ہو۔ حدید کی مسلسل برین واشنگ کرنا، انیزہ کے متعلق ولید سے کچھ نہ کچھ غلط بیانی کرنا، سوہا کا حدید کو بھڑکاتے رہنا، ان سب چیزوں کا یہی تو انجام ہونا تھا۔ آج ان کی بیٹی بلا شراکت ہر چیز کی مالک تھی۔ وہ سیاہ کر یا سفید، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہوں نہ بڑے
ठाठ बाट से रहती थी, मेरा तो अंदर तक जल जाता जब इसे ऐश करते देखती थी। और भाई की वीरान जिंदगी देखकर कोई खलिश भी पैदा नहीं हुई थी। वक्त गुजरता गया, हदीद और सोहा के 3 बच्चे हुए और बड़े भी हो गए थे। सदीद अब भी 24 साल का हो चुका था। वह काम कर रहा था। इस शाम डाल सा लेटा हुआ था, अकेडमी भी नहीं गया था। भाभी पानी दे दे, इसने पुकारा। आई सदीद। वो बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही थी। चूल्हा बंद करके पानी गिलास लेकर इसके कमरे में आई तो वो लेटा हुआ था। क्या हुआ सदीद? इसने साइड टेबल पर गिलास रखा और इससे पूछा। सर में बहुत दर्द है। इसकी आवाज भारी हो रही थी। टैबलेट ला दूं? सोहा को तफ्तीश हुई। वो मुड़ी ताकि किचन से इसके लिए टैबलेट ले आई। किस दीदी ने इसका हाथ पकड़े। वो हैरत से मुड़ी। किस दीदी ने झटका देकर खुद से करीब कर लिया। वो इसके सीने से जा टकराई। वो खड़ा हो चुका था। इसके संभलने से पहले इसने इसे बाजू में जकड़ लिया। हैरत तो सदमे की जाती से सोहा को मंचमित कर दिया। सदीद। वो पासों में आकर चीखी। ये क्या कर रही हो तुम? मोहब्बत कर रहा हूँ आपसे, इसमें गुस्से की क्या बात है? उसकी आंखों में देखता हुआ धीमी आवाज में बोला था। वो कांप गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। वो जोर से चीखी। चीखे चीखे और चीखे। अजीब फरमाइश थी। सोहा के पास तो हैरान होने का भी वक्त नहीं था। वो सचमुच बुरी तरह हाँफने लगी थी। वलीद अपने कमरे से दौड़ते हुए आए। बच्चे लोगों से और हदीद जो ऑफिस से अभी वापस आए थे। अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखों में खून उतरा। आयश ने अपना लैपटॉप, फोन और चाबी सोफे पर फेंके उस सदीद पर चिपटा था। तुम खबीस इंसान, तुम इतना गिर गए हो और तुम्हें अपने इसके रिश्ते की हुर्मत का पास भी ना रहा। इस झटके से सोहा को लग गया और बेदर सदीद के मुंह पर मुक्के मारे थे। उन्होंने खुद मेरे साथ ये खुद आई थी मेरे कमरे में। इसने झटके से खुद को छुड़वाया। बकवास नहीं करो सदीद। सोहा चीखी। मैं सही कह रही हूँ ना? ये खुद आई थी मेरे पास। ये बहुत दिनों से मुझे सदीद बस करो, कर दो, मत बोलो इतना झूठ। और तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भाई की बीवी, वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेगी? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी? आपको आई थी? सवाल था या चाबुक? खदीज ने बेसख्ता पीछे हुआ था। जब एक औरत माँ होकर अपने सौतेले बेटे को वर्गला सकती है तो एक भाभी भी अपने देवर को क्यों नहीं वर्गला सकती? वली तो बस फटी हुई आंखों से इसे देख रहा था। अब कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। सोहा को लग रहा था छत इस पर आ गिरी हो और मलबे तले से सांस लेना दुश्वार हो रहा हो। हदीज सफेद रंगत लिए इसे देख रहा था। अब आप इन्हें तलाक देकर घर से निकाल दें, बच्चे अपने पास रख लें, क्योंकि जिस औरत का अपना किरदार ठीक नहीं वो बच्चों की क्या तरबियत करेगी? आपकी खामोश करने क्या सोच रहे हैं? सदीद ने हदीद को मुखातिब किया तो इतनी देर में इसने एक लंबा सांस आजाद की थी। तो तुमने जानबूझकर ये सब किया इंतकाम लेने के लिए? इस बार इसकी आवाज हमवार थी और लहजा मजबूत। सदीद का रंग तब्दील हुआ। नहीं, आपकी बीवी मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। अल्लाह के कहर से डरो सदीद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? सोहा बिलबिलाकर रोते हुए बोली। अल्लाह ही से डरता हूँ और किसी से नहीं। मेरा जो बिगाड़ना था आप सबने मिलकर बिगाड़ दिया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। सदीद, बदतमीजी मत करो। किसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा? कौन तुम्हारे सिर में ये बकवास डालता रहा है? सदीद आगे बढ़े। इसने तो नफरत से नहीं देखा। आपको मुझसे सवाल जवाब का कोई हक नहीं। इस घर में पहले भी कसूरवार औरत ठहराई गई थी, तो अब मर्द से पूछ पूछ क्यों हो रही है? अब भी वही असूल दोहराया जाना चाहिए ना? वलीद कुछ कहने नहीं लगे थे। खदीज बोल उठा। यानी तुम चाहते हो कि मैं सोहा को तलाक दे दूं? होना तो यही चाहिए। इसने कंधे झुकाए। मगर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी बेगुनाह है। जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारी एक घटिया साजिश है। हदीद की बात पर सदीद का चेहरा सही मायल हुआ। मेरी माँ भी बेगुनाह थी, मगर वो आपकी घटिया साजिश की भेंट चढ़ गई। आपको अपनी बीवी की बेगुनाही का इसलिए यकीन है क्योंकि सिर्फ आपको ही ये पता है कि मेरी माँ बेगुनाह थी। इसकी जुबान कोड़े बरसा रही थी, ना दिखाई देने वाले कोड़े जो हदीद के जिस्म में नहीं रूह को भी जख्मी कर रहे थे। पर वो ना करा सकता था न सॉरी करा सकता था ना तड़प सकता था। और 2 सूरतों में इसकी रसवाई थी। तो तुम सांप की तरह जहर अपने अंदर जमा करते रहे, जिसे आज हम पर उगल रहे हो। सोहा चीखी। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपके शोहर ने तो आपको अपना पूरा एतमाद दिया था। आपको तो फख्र से सर उठा कर रहना चाहिए। आप लोगों ने मिलकर मेरी माँ को इस घर से निकालने की कामयाब साजिश की और अब भी एक दूसरे पर एतबार है। पापा को माँ पर एतबार नहीं था। उन्होंने बगैर वक्त जाए कि इन्हें फारग कर दिया। न मेरा सोचा, न मेरी माँ की वफादारी पर नजरसानी की, और सिर्फ इनके कहने पर इसने हदीद की तरफ उंगली से इशारा किया। सिर्फ इसके ड्रामे पर यकीन करके मेरी माँ को तलाक दे दी, और ये आप पर शक तक नहीं कर रहे? कितने शातिर, कितने मक्कार हैं ये। जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर दे, अपने घर की तरफ आते किसी तूफान का जिसे चाहे रुख मोड़ दे, पर दूसरों का सब कुछ तबाह कर सकते हैं, पर दूसरे इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप सुने, ये इतराफ कर रहा है कि इसने जानबूझकर किया है। हदीद ने बाप को मुखातिब किया। वो दुख से शल हुए खड़े थे। बच्चे कुछ कुछ सूरत हाल भी समझ कर तनफ्फुर से सदीद को देख रहे थे। पापा का दोनों बेटों से एक ही जुर्म, 2 बार सर जद हुआ है। उन्होंने एक को सजा नहीं दी तो दूसरे को कैसे देंगे? सदीद के लहजे काटने वलीद को अंदर तक जख्मी कर दिया था। इस रात किसी ने घर में खाना नहीं खाया। हदीद और उसकी फैमिली अपने कमरे में तो सदीद अपने कमरे में बंद था। वलीद भी अपने बेडरूम में आके लेट गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि सदीद अपने अंदर इतनी नफरत जमा कर रहा है। इस पर माँ की जुदाई ने इतने मनफी असरात मुरतब किए हैं कि वो अंदर ही अंदर इंतकामी मंसूबे बना रहा था। इन्हें बस यूं लगता था कि वह दिन ब दिन खामोश होता जा रहा है, पर क्यों हुआ इस पर
चला था। ठीक ही कह रहा था कि उन्होंने बगैर तहकीक के अनीसा को तलाक दे दी और हदीद ने सिरे से सोहा पर शक करने से ही इनकार कर दिया था। अगर वो भी इनकी तरह जज्बाती होकर इंतहाई कदम उठा लेता तो इसके तो 3 बच्चे थे। इसकी जिंदगी कितनी बुरी तरह मुतासर होती होती जैसे सदीद की हुई थी, जैसे इनकी अपनी हुई। गुस्से में तलाक देने के बाद कुछ ही अरसे में इन्हें पता चल गया कि अनीसा खुसूसन घरेलू जिंदगी अनीसा के बगैर कितनी मुश्किल बन गई थी। ना दिन का सुकून रहता था, ना रातों का चैन। इस हाल वो बेस सोचे समझे किए गए अख्ताब ने इनकी जिंदगी को एक भूचाल के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हदीद को कसूरवार नहीं जाना था। इन्हें वो बच्चा लगता था अनीसा ने ही इसे बरगलाया होगा। ये ख्याल ही दिलो दिमाग में आग लगा देता था। वो जो एक कसक सी सदीद को रोते तड़पते देखकर पैदा होती थी, इस ख्याल के तहत के आते ही अपनी मौत आ बढ़ जाती थी। पर आज सदीद ने इनकी आंखें खोल दी थी। जो गफलत की बेटी पट्टियां ना इनकी आंखों पर बंधी हुई थी, एक झटके से खोल दी थी। क्या वाकई हदीद ने ड्रामा किए थे? वो अनीसा से इतनी नफरत करते थे कि हर हद से ही गुजर गया था। उफ, सोचते हुए इन्हें लग रहा था इनके दिमाग के लगे फट जाएंगे। मैं गई, वो तो शुक्र है कि इनकी आंख लगी थी। दस्तक की आवाज पर आंख खुली तो उन्होंने देखा हदीद खुले दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अंदर आ जाओ। उठ बैठे हुए उनके पास चला आया। अस्सलाम वालेकुम पापा, आप फ्रेश होकर आ जाएं, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं ये ही हूँ अभी। वो वॉशरूम चले गए। अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर आया तो वो मुंतजिर बैठा था। मैं सोहा को आंटी की तरफ छोड़ रहा हूँ कुछ दिन के लिए। मेरा ट्रांसफर तो कितने दिनों से हो चुकी है, मगर मैं ही रुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुनासिब है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। सोहा भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। खामखा कोई नया इशू बनने से बेहतर है कि हम चले ही जाएं। सुबह सुबह इनके हवासों पर बम फोड़ा था। वो इन्हें देखते ही रह गए थे। वो कह भी क्या सकते थे? वो इनसे इजाजत तलब नहीं कर रहा था, इन्हें इत्तला दे रहा था। जाने से पहले वो एक खानसमा का बंदोबस्त कर गया था। इसे गए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था कि ये हादसा पेश आ गया। वो फौरी तौर पर इसके पास चले गए थे। उन्होंने तो सतीश से भी कहा था, मगर इसने फौरन इनकार कर दिया था। वापस आ जाने पर भी इनकी खैरियत तक नहीं पूछी थी। वो कुछ ही देर में इनके पास आ बैठा। उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वो कह बैठे, तुम्हारी मामा भी तुम्हें इसके पास हॉस्पिटल में। वो जो इनकी बात के आगाज में ही देख रहा था, बात के इख्तिताम तक सकते में चला गया। मेरी मामा हॉस्पिटल में? और मुश्किल इसके लफ्जों से लबों से निकला और जैसे किसी ने इसमें करंट छोड़ दिया। मामा मामा वहाँ होती हैं इस शहर में? आपने इन्हें देखा? इनसे इनका एड्रेस या फोन नंबर लिखा? मैं इनसे मिल सकता हूँ ना? आपको क्या पता है वो कहाँ रहती हैं? वो तो से सवाल पर सवाल किए जा रहा था, बगैर इन्हें बोलने को मौके दिए। इनका चेहरा जोश से टमटमाने लगा। वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोल पाए, नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई इनसे। ओह! इसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। हो सकता है हदीद को कुछ मालूम हो। मैं सुबह इससे पूछकर तुम्हें बता दूंगा। उन्होंने इसे तसल्ली दी। आप अभी पूछ लेना प्लीज पापा, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो बेबस हुए। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहा होगा। प्लीज पापा, मुझे अपनी मामा से मिलना है प्लीज। इसके लहजे में बेचैनी तड़प माँ से मिलने की तमन्ना थी। उन्होंने फोन उठाकर हदीद का नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसी तबीयत है बाप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम था, तुमसे कुछ पूछना था। इनके लहजे में झिझक महसूस करके वो बेचैन सा हुआ। क्या पूछना है पापा? पूछें। और निज़ा तुमसे मिलने आई थी तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस बताकर गई थी। वो कुछ देर खामोश रहा। पहले तो नहीं, मगर दूसरे दिन जब मैं डिस्चार्ज किया जा रहा था, आपका काउंटर पर बिल पे करवाने और डिस्चार्ज स्लिप बनवाने गए हुए थे तो वो मेरे पास आई थी और अपना नंबर और एड्रेस भी दिया और सदीद का भी नंबर लेकर गई हैं, सदीद की तस्वीर भी दिखाने के लिए कहा, मगर मेरे पास थी ही नहीं। वो जैसे जैसे बता रहा था, वलीद सदीद की आंखों में दिए रोशन हो रहे थे। अब वो एड्रेस बता रहा था। हदीद बेटा, टेक्स्ट में ये एड्रेस लिख कर भेज दो। ओके पापा। उन्होंने फोन बंद करके सदीद को देखा। इसका चेहरा तमतमा रहा था। पापा, मैं कल ही इनसे मिलने जाऊंगा। मैं अपनी मामा से मिलने जाऊंगा। वो आए दिन मेरे ख्वाबों में आती हैं। मैं इनसे सच में मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिल भर ड्राइवर के साथ भेज दूंगा। तुम तैयारी कर लो, कल 10 बजे निकल जाना। पापा दी ग्रेट। वो इनसे लिपट कर गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। दिल की कैफियत इतनी अजीब हो रही थी कि मुस्कुराना भी एक मुश्किल मरहला बन गया था। वो कब से फोन हाथ में नहीं से घूर रही थी। दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। जब से वह हदीज से इसका नंबर लाई थी तो ऐसी बेताबी थी कि बस घर पहुंचते ही इससे बात करेंगी, इसकी मीठी आवाज सुनेंगी, इसे अपनी बेकरारी के किस्से सुनाएंगी। मगर फोन हाथ में लेते ही एक खौफ ने इस पर हमला कर दिया। सदीद इनके बारे में जाने क्या सोचता होगा, इसे इनके मतलब क्या बताया गया होगा। वो इनसे नफरत ही ना करता हो, वो इन्हें एक बुरी माँ नहीं समझता हो, वो इससे बात करना भी तो पसंद ना करे। तो मुतजाद ख्यालात ने इन्हें बेदम सा कर दिया था। ना कल वो इसे फोन करने का हौसला कर पाई थी, ना आज। ऑफिस भी नहीं गई थी, मुसलसल फोन हाथ में लिए 1 घंटे से जायद हो गया था। सलवा यूनिवर्सिटी गई हुई थी। मुख्तारा और अजमत अपने अपने कामों में मसरूफ थी। कॉल बेल की आवाज गूंजी और तादेर गूंजती रही। कोई बेल पर उंगली रखकर उठाना भूल गया था। कौन आ गया? इसने कोफा से सोचा। अजमत के बोलने की आवाज आई। वो मुतवज्जा नहीं हुई, यूं ही फोन पर
मजूद सदीर के नाम पर उंगली फेरती रही। कुछ देर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई और भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने फोन से नजर उठाकर बाएं जन्म देखा। चौंक कर खड़े होते उन्होंने इसका चेहरा देखा, इतना खूबसूरत चेहरा, जोश से टमटमाता हो, चमकती हुई खूबसूरत आंखें। कौन था वो? इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। इनका क्या लगता था, ये किसी को बताने की क्या जरूरत नहीं थी। इनके होंठ लरजे थे। तुम? खून इसके हाथ से गिरा नहीं, किसी चीज का होश नहीं था। इसके सारे हवास इस चांद चेहरे के तवाफ में मसरूफ थे। वो मुस्कुराता हुआ मजीद करीब हुआ। मामा मस्तीद, या अल्लाह, ये ख्वाब है तो मुझे कभी जगाना नहीं, जागना नसीब ना हो। हकीकत है तो मुझे यकीन अता कर कि यह हकीकत ही है। वो भी शिद्दत जज्बात से कांप रही थी, जिसे देखने मिलने के लिए 18 सालों से तड़प कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी। वो सामने आया तो इनसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो इसे लिपट ही जाए इसका आलिम महसूस कर सके। सदीद आगे बढ़कर खुद इनसे लिपट गया। मामा, उन्होंने इसे अपने बाजू के सार में ले लिया। उनकी पेशानी को चूम रहा था, फिर इनकी बरसती आंखों को, फिर इनके सर पर अपना गाल टिकाकर इन्हें मजीद खुद में बींच लिया। रफ्ता रफ्ता इन्हें यकीन आने लगा कि वो सचमुच इनके पास है। इनके वजूद को अपने सीने से लगाए खड़ा, इनके अपने वजूद का हिस्सा, इनका अपना बेटा, इनका सदीद ही है। उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों, दोनों हाथों में थामा और बेतहाशा चूमने लगी। मेरा जान, मेरे बच्चा। मोना माँ को मुस्कुराता रहा। आए मामा, बैठते हैं। इसने कंधों से थाम कर इन्हें बिठाया और खुद भी साथ बैठ गया। खासी देर बाद इनके जज्बात में इत्मीनान आया था। हवास बहाल हुए तो इन्हें फिक्र हुई। तुम सफर से आ रहे हो तो तुम्हें तो भूख लगी होगी। ओह, मुझे तो ख्याल ही ना रहा। उठने लगी तो इन्हें फिर बिठा दिया। अभी कुछ भी नहीं, अभी हम दोनों बातें करेंगे, फिर खाना पीना सब हो जाएगा। नहीं, बस मैं अभी आई। उठ कर किचन में आई। फ्रीजर से कबाब, नगेट्स और लेज़ निकाले। निम्को और बिस्किट सब घर में मौजूद था। उन्होंने अजमत को सब समझाया। खुद सदीर के पास आ बैठी। सलवा यूनिवर्सिटी से आई तो लॉन्च का मंजर देख कर वही दरवाजे पे ही जमी रह गई। मोम के साथ बैठा ये लड़का कौन था जिसे वो इतनी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें और नवाले बना बना कर खिला रही थी, और वो भी इनसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। सलवा, आओ बेटा, आओ ना। हाँ, वहां क्यों रुक गई? अनीसा की नजर सलवा पर पड़ी तो काला सतीज में मुड़कर इसे देखा और कुछ देर के लिए देखता ही रह गया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वो आगे बढ़ी। मॉम। सदीद ने इंतहाई इस्तेजाब से पहले इसे फिर अनीसा को देखा। इसका मतलब है कि उन्होंने शादी कर ली थी। अनीसा इसकी सोच से बेखबर, इसकी शफकत से मुस्कुराती हुई इन्हें और इसके कंधे पर बाजू फैलाकर सदीद के करीब ले आई। सदीद, ये सलवा है, तुम्हारी आजर मामू की बेटी। ओह, सदीद के तने हुए सांप एकदम ढीले पड़े थे। माय गुडनेस, सलवा, यह सदीद है। कितना मुकम्मल तारफ था इसका, ये सदीद है। सदीद जो इनका बेटा था। सबको पता होना चाहिए कि सदीद तो बस एक ही है जो अनीसा का बेटा है, और बस। सलवा खुलकर मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आपके घर वाले सब ठीक हैं? इसने भी अखलाक निभाया। जी सब ठीक है, मैं मोम के पास होती हूँ। वो सब तो सऊदीया में होते हैं। अच्छा अच्छा, वो मुस्कुराया। सलवा, सलवा, तुम फ्रेश हो जाओ तो आमिर और आजर भाई को सदीद के आने का बता दो। ओके मामा। वो अपने कमरे में चली गई और फिर सीधी से बातें करने लगी। सलवा ने आमिर अंकल को फोन किया। वो तो ऑफिस उठकर सीधे वहीं आ गए। आंटी और बच्चे भी आ गए। अजहर, अतिया, रूबी, अनास और असफर सब ने फोन पर सदी से बात की। भी अपना खुशी थी जो सबके रवैये से चेहरों से ज़ाहिर हो रही थी। सबने बारी बारी अनीसा को मुबारकबाद दी थी। इनकी बहन की आजमाइश खत्म हो गई थी। जिस बेटे के लिए वो तड़पती रही वहाँ मिला था। रात को सब चले गए। सलवा भी सोने के लिए चली गई, मगर इन माँ बेटे की बातें सुबह तक चलती थी। नमाज पढ़कर सदी तो सो गया, मगर वो नहीं सोई, इसे देखती रही। इन्हें आंखों की प्यास एक दिन रात में बुझने वाली नहीं थी। वो 2 दिन रहा, इनका बस नहीं चल रहा था। वो इसके लिए क्या क्या न कर डाले। 2 दिन वो जो ऊपर नहीं गई, फिर चौथे दिन वो वापसी के लिए तैयार था। इनके बह रहे थे, अश्क सॉरी, मगर दिल पर सुकून था। अब देखो कब तुम्हारा चक्कर लगता है। जल्द ही इंशाल्लाह। वो आजम से मुस्कुराया। आजकल वो जिस कदर खुश थी, सलवा ने अपने होश में नहीं कभी इतना खुश नहीं देखा था। तुम्हें एक बार हदीस से माफी मांग लेनी चाहिए। तुमने अच्छा नहीं किया। फरीद ने इसे अच्छे मूड में देखकर बात की। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया वो माफी के लायक नहीं था। मैं इसे बुला ही ना हूँ, ना भी बुला पाऊंगा। इसका लहजा कतई था। दोनों भाइयों में ये नफरत भी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही रहोगे दोनों अलग अलग? आप बेफिक्र रहें, वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। जिस घर पे हुकूमत करने के लिए सोहा भाभी और आली आंटी ने हदीद भाई के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश की और मामा को निकाल कर पूरे घर की मालकिन बनने का मंसूबा बनाया, इस घर को वो ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है। इसके जहर खुंदा लहजे ने इन्हें बुझाका किया। इनके इंकशाफ ने वो समझ नहीं पाए। तुम किसी से बदगुमान हो चुके हो, हर किसी के खिलाफ। नहीं, मैंने अपने कानों से आली आंटी और भाभी की बातें सुनी हैं। मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डेला जाता था, वो भी इतनी तकलीफ ना होती जितनी इन दोनों की बातें। इनकी खुशी से चहकती आवाज हुई। उन्होंने मेरी इस दिन जितनी तकलीफ से गुजारा था गुजर गया। मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार इनको जरूर सबक सिखाऊंगा। इन्हें पता तो चले कि इस किसी की जिंदगी बर्बाद करके, किसी का घर तबाह करके इनके मलबे पर अपना खुशियों का भरा महल कैसे सजाया जाता है। इनका लहजा हनूज वैसा ही जहरकुंदा था। खुदा ना खासा हदीद कोई गलत कदम उठा लेता तो
उन्होंने नाराजगी से इसे देखा। इसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे पता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा किसी को पता नहीं हो सकता कि सोहब अभी बेगुनाह है। जब तुम्हें सब पता चल गया तो दुबई के मुतालिक तो दिल साफ कर लो। इसने खुद तो ये सब नहीं किया, ना इसे बकायदा प्लानिंग करके, हालांकि वो खुद अंदर से डेग गए थे ये जानकर कि बहन और भांजी इनकी अस्तवाजी जिंदगी की तबाही के जिम्मेदार हैं। मगर अब वो ऊपर से मजबूत बनता ही था। यही वक्त था कि वो बिखरते आशियाने को संभाल लेते, वरना तबाही तो सामने नजर आ रही थी। एक तलक मुस्कुराहट सदीद के लबों पर फैली। इनके अंदर इतनी नफरत थी कि सिर्फ रास्ता दिखाने की देर होती है। वो सारी नफरत इन्होंने इस रास्ते से बाहर निकाल दी थी। इनके का ही ये नतीजा है कि मेरी माँ कहीं है तो बाप कहीं। मैं एक के पास रहूं तो दूसरे की याद चैन नहीं लेने देती। हर पल की बेचैनी अजियत तो इस पर था कि वो अपने किए पर कोई निदामत भी नहीं, किसी से कोई माजरत भी नहीं। तो तुम ये चाहते कि वो माजरत करे? कहने से की तो क्या माजरत की, वैसे वो बहुत अनाप्रस्थ हैं। इनकी ना सरनगू ना हो जाए अपनी गलती तस्लीम कर लेने से। वो तो किसी कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। फोन इसने चार्जिंग पर लगाया हुआ था। इसकी बेल की आवाज सुनकर वो वहां से उठा था। दूसरी जानब अनीजा थी। इन्होंने जो बात से बताई थी इसे सुनकर वो सकते में रह गया। मोम, कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने। अनीसा सलवा के लिए किचन चाउमीन, सॉरी किचन नहीं, सॉरी चिकन। कभी कभी वो यूं ही इसके लार उठाती थी। वो बोली फूली सांस के साथ किचन में आई तो इसकी फैली हुई आंखों से हैरत ज़ाहिर हो रही थी। वो कुछ सुलझी। कौन सी फैमिली, कौन से लोग, वो समझ ना पाए। और जिन्हें देखने आप हॉस्पिटल गए थे। इसे याद लाया। वो नीचा के हाथ से चम्मच छूट गया। हदीद और सोहा। इन्हें यकीन न आया। आफताब के इस डाइनिंग रूम में दाखिल हुई और सामने बिलाशुबा वो दोनों मौजूद थे। इनके अंदर दाखिल होते एहतराम उठकर खड़े हुए। कैसे हो बेटा, कैसी तबीयत है? बैठने के बाद उन्होंने हदीद से पहला सवाल यही किया। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को भी ले आते ना, कुछ जरूरी बातें करनी थी। इनकी मौजूदगी मुनासिब नहीं थी। वो वैसा ही संजीदा था। जरूरी बातें? कैसी जरूरी बातें? अपने गुनाहों का इतराफ, अपनी गलती की माफी तलब करना, इनका जिक्र करना शायद बच्चों के सामने हमारा रहा सा इमेज भी खराब कर देता। अनीसा तो हैरत ज़दा थी। कैसा इतराफ, किस गलती की माफी? सो हाउट कर इनके कदमों में आ बैठी कि इनके घुटनों पर हाथ रखकर वो मुल्तजी अंदाज में गिड़गिड़ाई थी। मामी प्लीज हम दोनों को माफ कर दें। हमने जो गुनाह के साथ जो जुल्म किया इसके लिए हमें माफ कर दें प्लीज। इसने दोनों हाथों इनके सामने बांध दिया। वो सोहा जो सलवा के बकौल इतनी मगरूर थी कि इनसे एक बात नहीं की। वो यूं हाथ बांध कर इनके सामने कारपेट पर बैठी निश्चित कर गई थी। हदीद भी इसके साथ ही आकर बैठ गया। मैंने आपकी जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान किया जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती, तो सिर्फ माफी हो सकती है। आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है। मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ, गुनहगार हूँ। मैं आपका जो सजा देना चाहिए मुझे कबूल है। मैंने बहुत ज्यादती की, बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं कभी खुश नहीं रहा, कभी भी नहीं। बस ऊपर से खुश नजर आने की एक्टिंग करता रहा। वरना जब सदीर रातों को उठ उठ कर रोता तो मैं खुद भी इसके साथ ही रो पड़ता। पहले जालिसी में इसे अपने करीब नहीं आने देता, फिर अपनी गलती के ततरा के लिए इसे खुद से करीब किया और फिर रफ्ता रफ्ता मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। इसकी हंसी, इसकी वो मुझे मासूम बातें सब मुझे अट्रैक्ट करने लगी। 2 माह पहले तक हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी, सगे भाइयों जैसे। मगर फिर पता नहीं क्यों वो बदलने लगा। मुझसे सोहा और बच्चों से खिंचा खिंचा नजर आने लगा। मैं अपनी ट्रांसफर रुकवाने के लिए जान तोड़ कोशिश में मसरूफ रहा और अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि वो मुझसे कितना दूर जा चुका है, मुझसे कितनी नफरत करने लग गया है, बल्कि मेरी इसलिए जान गया है। अनीसा ने कण को छू लिया था। यूं एक झटके से पीछे हटी। मन की कैफियत महसूस करके अफसरदगी से मुस्कुराया। हाँ, इसे सब पता चल चुका है, सब जान गया है वो। किसने इससे ये सब शेयर किया और क्या जरूरत है ये नफरत की भट्टी सुलगाने की? पता नहीं, मगर सच छुपता भी तो नहीं है ना कभी तो इसे पता चलना ही था। मुझे सजा मिलनी ही थी। क्या सजा दी इसने तुम्हें, और वो कौन होता है तुम्हें सजा देने वाला? मैं आज ही इससे बात करती हूँ। इसका तनफ्फुस तेज हुआ था। नहीं, आप इससे कुछ नहीं कहेंगे, वो ठीक कर रहा है, इसे यही करना चाहिए। बस आप मुझे मेरे किए की माफी दे दे, शायद मेरी जहनी अजियत कुछ कम हो जाए। इसकी आवाज में करब था। सोहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सलवा जो अंदर चाय की ट्राली ले आई थी वहीं चमकी। वो दोनों मियाँ बीवी जिन्हें इसने मगरूर का खिताब दिया था वो आज इस वक्त किसी तरह मोम के कदमों में बैठे माफी मांग रहे थे। अनीसा ने हदीद का सर अपने साथ लगाकर इसके बालों को चूम लिया, दूसरे हाथ से सोहा को लपेट लिया। मेरे बच्चों, माँ तो माँ होती है, ना सगी ना सौतेली, बस माँ होती है। वो भी इस वक्त गुस्से में थे। वरना एक बार तो सोचते कि क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ इनकी आवाज क्यों पाई, मगर शैतान ने आगे का काम आसान कर दिया। शर्मिंदगी की एक पहर थी जो हदीद के अंदर दौड़ी थी, लहर आनी। मुझे लगता है इसका ज़मीर इसे जो मलामत करता था अनीसा की वस्त कल्बी के सामने तो वो मलामत कुछ भी नहीं थी। इसका सर मजीद झुक गया। चलो उठो, चाय पी लो, आइंदा बच्चों को भी साथ लेकर आना। कुछ देर बाद वो तो तलफिजा में सब चाय से लुत्फानंदोज हुए थे। सुहास सरवत से छोटे छोटे सवाल कर रही थी। इस दिन हम हॉस्पिटल में आए आप लोगों से मिलने,
मिलने गए तो आपने तो मोम से कोई बात ही नहीं की थी। सलमा ने दिल में छिपता हुआ सवाल बाहर निकाल ही दिया। एक तो मैं हैरान थी, फिर इससे ज्यादा पेशवा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। सुहाव सुर्दगी चमकाई। अच्छा, अब संडे को बच्चे को लेकर आओ, यहाँ सब मिलकर छुट्टी मनाएंगे। अनीसा ने माहौल बदलने के लिए बात का रुख बदल रहा था। जरूर, हदीज हल्का चमकाया। आप कब से मामी के पास हैं? सोहा ने सलवा से पूछा। 4 साल की थी, अब तो लगता है पैदा भी यही हुई है। मैंने मॉम से प्रॉमिस कर रखा है कि हम हमेशा इन्हीं के पास रहूंगी। लेकिन लड़कियां तो हमेशा अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह सकती, इन्हें शादी के बाद जाना ही पड़ता है। सोहा ने शरारत से कहा। इसका चेहरा एक पल के गुलाबी हुआ। मैंने मोम से कहा कि घर दामाद ढूंढ लेंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सब हंस पड़े थे। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, शादी के काबिल तो क्या ख्याल है फिर? अनीसा ने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा। बड़ा नेक ख्याल है, मैं तो हरदम तैयार हूँ। आप बताएं कब करनी है? इस किताब तर पर उन्होंने एक चिपट लगाई। शादी से पहले दीगर लवाजमात भी पूरे करने होते हैं। सबसे पहले तो कोई जॉब ढूंढो, फिर अपने पापा को देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है, फिर ऐसा कदम उठाना। जॉब तो मिल जाएगी और लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए, पापा को नहीं, और मैं पसंद कर चुका हूँ। इसके इत्मीनान ने इन्हें हैरान किया। कौन है वो? सलवा। वो तुम बखूदी से देखती रह गई। वो सीधा होकर बगौर उनका चेहरा देखने लगा। क्यों, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो हिचकिचाई। क्या मगर? मामा, आप खुलकर बात करें। तो संजीदा हुआ। तुम्हारे पापा सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया हुआ कि मैं जिनसे शादी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मैं इन्हें सलवा के मुतल्लिक भी बता चुका हूँ। तुम इसे पसंद करते हो? वो इसे देख रही थी। पहले दिन पहली नजर से ही वो है ही इतनी प्यारी। उन्होंने तो इसके कंधे पर लगाई। ज्यादा ही फ्री हो रहे हो। मुस्कुराहट उनके लबों पर फूल खिला रही थी। फिर ये भी सोच रहा हूँ कि आपसे इतनी मोहब्बत कोई और बहू नहीं करेगी जितनी ये मोम मोम करती हुई फिरती है। वो खिलखिला कर हंसती। दूसरे दिन चूंकि इतवार था, वो 10 बजे तक नाश्ते से फारिग होते ही लंच की तैयारी में लग गई थी। तकरीबन 2 बजे हदीस सोहर बच्चे केक मिठाई और फ्रूट्स के साथ आ पहुंचे। चहल पहल की सी हो गई थी। शदीद कहीं गया हुआ था। आया तो लॉन्च की रौनक देकर वहीं चला आया। अस्सलाम वालेकुम। हदीर के करीब आया तो वो भी खड़ा हो गया। सॉरी भाई। हदीर के कुछ कहे बगैर से गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो सदीर ने सोहा की तरफ देखा। भाभी। सोहा ने हाथ उठाकर मना कर दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो। मगर वो इसके होठों के किनारे से पूर्ति मुस्कुराहट देख चुका था। सो हंसता हुआ आगे बढ़ा और भतीजी से मिलने लगा। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। भाभी, आप प्लीज अपना ट्रांसफर वापस वहीं करवा लें, क्योंकि पापा की तन्हाई के एहसास से मैं यहाँ सुकून से नहीं रह पाऊंगा। सदीद ने मुल्तजी होकर हदीद से कहा। रह पाऊंगा? हदीद ने दोहराया। तुम यही मामा के पास रहना चाहती हो? आप खुद सोचिए, शादी के बाद मेरा यहाँ से जाने को कैसे दिल चाहेगा? स्वाया नीचे के सबको सांप सूंघ गया था। सरवा भी हाथ रोक इसे हैरत से देख रही थी। तुम यहाँ किससे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? बड़ी देर बाद हदीद का सकता टूटा था। हाँ हाँ, यही अपनी सलवा के साथ। सुहा को अच्छा लगा गया था। बच्चे बस सदीद को और कभी सलवा को देख रहे थे, जो हक्का बक्का सदीद को देख रही थी, जो जब इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक अपने ग्लास में ले रहा था। हदीद ने भी सख्ता नीचे की तरफ देखा, जो सलवा को देख रही थी। निगाहें फेर कर हदीद को देखा और हल्के से मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया, साथ ही आंखों से सलवा की तरफ इशारा किया, जो अभी तक सदीद को देख रही थी। सोहा खनकारी। क्या हुआ सलवा, तुम्हें सदीद की बात पसंद नहीं आई? नहीं, इसके मुंह से निकलने वाले नहीं ने सबको सकत कर दिया। स्वाय सदीद को इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रहा था। मुस्कुराती नजरें स्लेटी पर थी, जो उठकर खड़ी हो चुकी थी। मुझे लगता है सलवा पर आनी है। क्यों, क्या कमी है इसमें? तुम गौर तो करो। बात की कमी नहीं है। बात कमी की नहीं, बात तरीके की है। ऐसे प्रॉपर पहले मॉम से बात करनी चाहिए थी, फिर वो जो मुनासिब समझती। ये क्या तरीका सबके सामने टेबल पर यूं लांग कर देना? तो सच में नाराज थी। सदीद ने अपनी मछली ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए गिलास होंठों से लगा दिया था। सोहा ने सलवा की ताकीद की। हाँ हाँ, बात तो ठीक है सलवा की, वो मैं कर चुका हूँ। मोम से पूछ लें। तुम कमरे में चलो, मैं आती हूँ, तुम तो बात करती हूँ। अनीसा ने सलवा को पिचकारा, वो चली गई तो उन्होंने सदीद और सोहा को आगाह किया था। सॉरी, हदीद और सोहा को। मामा सलवा के साथ उसके कमरे में जा चुकी थी, और अब्दुल मुईद और जीद शदीद के साथ लैपटॉप पर मसरूफ हो गए थे। सो वो चारों बैठे सुकून से बातें कर रहे थे। तुम्हारे पापा से राय ले लूं, फिर मैं आजर भाई से बात करूंगी। जी बिल्कुल। वैसे सलवा को देखती ही मुझे सदीद का ख्याल आया था। बहुत अच्छा कपल बनेगा। सोहा ने मुस्कुराते हैं हदीज ताई चाहे इसने से बात में सर हिला दिया। मुझे माम ने जब हदीद भाई की खैरियत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल भेजा, तो मैंने पहले रिसेप्शन से इनका नाम मालूम किया। फिर पापा को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से मॉम का ख्याल रखूं और जैसा कहें वैसा करूं। उन्होंने मुझे हदीद भाई के मुतालिक बताया। फिर जब मॉम इनसे मिलने गई तो वहाँ वलीद अंकल आ गए। इनके से मिलकर वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैंने पापा को बताया तो वो बेचैन हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो इनके पास सो रहे हैं, कोई ट्रंकुलाइजर दे दूं ताकि वो सो जाएं। इस रात पापा ने मोम से बहुत देर बात की थी। मम्मी से भी करवाई ना। बहुत रोई थी मोम, बहुत रोई थी। मैं बस नहीं चाह रहा था कि मैं आपको कहाँ से ले आऊं।
اپنی موم کی ان کی زندگی کی بہت خوشی کیسے لا کر کوئی ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب خود چلے آئے۔ میں نے اپنے شوہر میں انہیں اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی قائم رکھے، آمین۔ صدیق نے مسکرا کر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی جس کی ماں کی محبت میں جگمگا رہا تھا۔ یاد رہے کہ مجھ سے تمہاری شادی بھی ان کی خوشی بلکہ بہت بڑی خوشی ہوگی، اس لیے تو ہاں کی ہے۔ سلمان نے اسے چڑھایا پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہم ماں بیٹے کا دل رکھ لیا۔ نہیں ویسے بھی میں تو یہی چاہتی تھی کہ ہاں کہ موم کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اچھا صرف اسی لیے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلمان نے ہلکا سا رخ موڑ کر لیا۔ بڑا مشکل تھا اس کی جگنوں کی طرح چمکتی آنکھوں میں دیکھنا۔ شدید کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اچھا جی خیر، آپ کی مہربانی نوازش یہ بتا دو کہ جب تک حدید بھائی کی ٹرانسفر نہیں ہو جاتی میں یوں ہی آیا کروں گا ویکنڈ پر، وش تو کرو گی نا؟ نہیں۔ منفی مسکراتے آگے بڑھ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے خوشیاں بہار کے پھولوں کی طرح اپنے ارد گرد بکھیرتے دیکھنے لگا۔ جب خوشیاں آتی ہیں تو پیچھے سارے دکھ پریشانی بھول جاتے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی زندہ دل کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں۔ ختم شد۔ یہ تھا ناول۔ یہ میں ہر مرتبہ بولتی ہوں۔ ہوپ سو سب کو پسند آئے۔ مجھے تو زبردست لگا، حالانکہ میں یہ ناول پہلے بھی پڑھ چکی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں بار بار پڑھوں، کیونکہ اس میں ایک لیسن بھی ہے، ایک کہ کبھی بھی کسی آنکھوں دیکھا کبھی سچ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اس کو عورت کو بھی ایکسپلینیشن کا موقع دینا چاہیے، جو بھی عورت ہو یا مرد دینا چاہیے۔ بس میں کہتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں ہمیشہ اعتماد ہو، سب سے زیادہ یہی ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے نا تو میں کہتی ہوں پھر وہ رشتہ ٹک نہیں سکتا۔ اور سب سے زیادہ جو انیزہ کا دل تھا، میں کہتی اتنا بڑا دل ہر عورت کا ہونا چاہیے جس نے اسے معاف کر دیا اور اس کا اتنا خیال رکھا۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔